पंजाब 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਵਸਰ ਬਣਨਗੇ। 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ 3000 ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਗੇਮ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਨਬੀਨ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ 3 ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ISI ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ MP ਤੇ ਇੱਕ UP ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਗੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ UP ਤੇ MP ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਜਲਦ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲ। सुनो की जानकारी साझी कर रहे हैं। स्पेशल सेल की एक टीम काफ़ी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे, और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे। इसी श्रृंखला में DCP अमित कौशिक और ACP कैलाश बिस्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का। एक आदमी पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है, जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है, जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था हैंड ग्रेनेड्स। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। और
यंग लड़कों को जिनको ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे, उनको इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज़ चला रहा था। शहजाद भट्टी ऑफ लेटली कुछ एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स में भी इसका नाम आ रहा है, कई जगह ग्रेनेड फेंकने की वारदातों में भी इसका नाम आ रहा है, और इस मॉड्यूल को बस्ट करके कई सारी जो पोटेंशियल वारदातें थी जो इन्होंने रेकी कर रखी थी वो अवॉइड कर ली गई हैं। इस ग्रुप के अभी 1-2 लिंकेजेस और भी हैं जिनको पंजाब पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा और उनके साथ कार्रवाई करके उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। थैंक यू। गुरदासपुर के अलावा कुछ बड़ा इंसिडेंट बहुत देखिए, किसी जगह पे ग्रेनेड फेंक देना अपने आप में बड़ा सीरियस सा इंसिडेंट होता है, और इनके उसमें 2-3 जगह और भी थी जहाँ पे इन्होंने रेकी की थी। वो जगह अमृतसर की भी थी, एक जगह और भी थी जहाँ इन्होंने रेकी की हुई थी। तो उन जगहों पे भी ये पोटेंशियल था, मतलब संभावित था कि भविष्य में जहाँ की इन्होंने रेकी की है, ये ग्रुप वहाँ भी इस तरह की घटना को अंजाम देता है। पंजाब के अलावा भी कहीं अभी इनकी एक्टिविटी जो शहजाद भट्टी की एक्टिविटीज़ हैं वो तो ये इस पे बेसिकली जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि आज की डेट में बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं। तो जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, बाकी स्टेट पुलिस के साथ मिलके कार्रवाई करती है, तो दिल्ली की पुलिस हो, हरियाणा की पुलिस हो या बाकी जितनी स्टेट पुलिस है, हम उनके साथ इन कोऑपरेशन एक दूसरे के गैंगस्टर्स का डेटा भी शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि बाहर के गैंग दिल्ली में एक्टिव रहते हैं या कुछ दिल्ली के लोग हैं जो बाहर एक्टिव होते हैं। तो इस गैंग्स के टेंटिकल इससे पहले दिल्ली में आ पाते, इसको बस्ट किया गया। हरियाणा में भी पीछे सिरसा में एक ग्रुप पकड़ा गया था, कुछ लड़के पकड़े गए थे, वो भी शहजाद भट्टी ग्रुप के ही थे। जैसा कि इनको कैसे पकड़ा है, ऑपरेशन कैसे कंडक्ट हुआ और रिकवरी क्या है? अभी रिकवरी में इनके पास से एक पिस्टल मिली है, 30 की पिस्टल है जो कि विकास प्रजापति के पास से मिली विद 10 लाइव कार्ट्रिजेस। प्लस इस घटना के जो इन्होंने रेकी किए हुए थे वो वीडियोस, इनकी बहुत सारी आपस की इंटीमेटिंग चैट्स जहाँ पे इनको डायरेक्शन मिल रही है, वॉइस नोट्स जो कि इस घटना के बारे में बता रहे हैं या और फ्यूचर की घटनाएं जो इनके करने के प्लान थे उनके बारे में बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के तौर पे मिले। सर, ये शहजाद भट्टी क्या उनको बैकअप दे रहा था या कोई और भी, और मोटिव क्या होता था हैंड ग्रेनेड फेंक के टेरराइज करना या एक्सटॉर्शन? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि ये नहीं, ये एक मतलब गैंगस्टर टेररिस्ट है शहजाद भट्टी, और गैंगस्टर की कैटेगरी में नहीं रह गया, क्योंकि प्योरली जब आप कहीं पे ग्रेनेड फेंकवा रहे हैं तो इट इज़ नॉट कि आप अपने सिर्फ गैंग के लिए काम कर रहे हैं, आप बेसिकली एक टेरर एक्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि टेरर एक्ट ये इंडिविजुअल के नहीं कर रहा है, ये अपनी जो एजेंसी के लिए काम करता है उसके लिए कर रहा है। पीछे से खालिस्तानी जो कहते हैं बब्बर खालसा या नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें प्योर सपोर्ट किसी और उस तरह के ग्रुप का नहीं है, ये प्योर इंटेलिजेंसी का है जी। कहाँ से पकड़ा गया? तीनों एक साथ पकड़ा? एक सबसे पहली गिरफ्तारी जो है वो 26 तारीख को हुई थी, जो कि विकास प्रजापति की थी हमने। वो गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से की गई थी, दतिया से। उसके बाद में एक गिरफ्तारी कल 29 तारीख को की थी जो कि पंजाब से की गई थी, फिरोजपुर से। और तीसरी गिरफ्तारी आज दिन में की है सुबह, वो गिरफ्तारी की है बिजनौर उत्तर प्रदेश से। बिजनौर से जो तीसरा लड़का आसिफ उर्फ आरिश है उसकी गिरफ्तारी की गई है। 2-3 दिन पहले करनाल से एक अमर सिंह अरेस्ट हुआ था, उसके बाद 2 हैंड ग्रेनेड, आईडी और आरडीएक्स वगैरह भी रिकवर हुआ था और काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन वगैरह थे। उससे इनका लिंक था कुछ भी? वो भी पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर ही आए थे। नहीं, वो मैंने पढ़ा उसके बारे में, लेकिन अभी उस तरह के लिंकेजेस डायरेक्टली नहीं आए। पर मैंने कहा कि पीछे से हाल फिलहाल में काफ़ी 2 नाम बड़े एक्टिवली सामने आए थे। गुरजेंट जंटा का नाम आया था, जिसने दिल्ली में भी 1-2 जगह फायरिंग कराने की कोशिश की थी। दूसरा नाम, उसी सिलसिले में हम काम कर रहे थे कि कोई और दिल्ली की तरफ ना आ पाए, तो ये एक तरह से प्रीएम्प्टिव एक्शन था, क्योंकि सिरसा में इसके फुटप्रिंट्स आ गए थे हरियाणा में। तो इससे पहले कि ये और आगे बढ़ पाता है, इसके ग्रुप को बस्ट किया गया। देखिए, मैंने आपको बताया कि 2-3 जगह के वीडियोज़ हैं इनके पास में। अमृतसर का एक वीडियो है, अमृतसर में किसी जगह का, एक पब्लिक प्लेस का है, और एक फिरोजपुर में, गुरदासपुर में जहाँ किया वहाँ भी किसी एक जगह का, और भी हैं। बाकी वो फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर सामने शहजाद भट्टी का भी हाल फिलहाल में एक वीडियो सामने आया था सोशल मीडिया पे, जिसमें वो लॉरेंस के भाई अनमोल को और उसके रिलेटिव को जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या वो टारगेट पे थे? इस तरह की अभी जस्ट अरेस्ट किया है इनको, तो अभी इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसको भी देखेंगे, पर अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। नेचुरली ये गैंगस्टर अगर हैंड ग्रेनेड फेंकवा रहा है तो वो पर्सनल तो नहीं हो सकता,
ये एक्ट ऑफ टेरर है। ग्रेनेड भी सारे पाकिस्तान बेस से। अब ये तो उसके बारे में जी 6-7 थानों पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे। जी। इनको लिंक है इनका। अब अगर वो सारे हैंड ग्रेनेड अगर आप पुराने इंसिडेंट्स पंजाब के देखेंगे, उसमें जो लोग पकड़े गए हैं तो उसमें निशान जोड़िया, हैप्पी पासिया वो वाला ग्रुप था, शमशेर सिंह शेरा, जिंदा वगैरह। हाँ ये सारा ग्रुप था। और इन सब ग्रुप के पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऐसा ही थी। हैरी चट्टा से पाकिस्तान से वो एक डिफरेंट, उसके बारे में भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा, स्पेकुलेट करना। शहजाद मिर्जा से पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ, क्या उससे भी कोई कनेक्शन अभी तक निकल करके आया है? सवाल रिपीट कीजिए प्लीज। जो ब्लास्ट हुआ, क्या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या उससे भी किसी तरीके का फाइनेंशियल लिंक? नहीं, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। सर फर्दर प्लानिंग नहीं की? फर्दर प्लानिंग जैसे मैंने कहा कि इनके पास से कई रेकी किए हुए वीडियोस मिले, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई कि इनको जो काम कर रहे थे कि एक तो इन्होंने कर दिया था, इससे पहले कोई दूसरे कर पाते इनको गिरफ्तार कर दिया। दिल्ली के वीडियो से कोई आपने? नहीं, दिल्ली का अभी तक कोई वीडियो नहीं सर मिला। कोई बड़ा शख्सियत को टारगेट कर नहीं, जो टारगेट मैंने बताया कि आपको इनको जो स्पेसिफिक टास्किंग दी गई थी हैंड ग्रेनेड्स फेंकने की दी गई थी।